This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. It has been 22 years. I have been helping students in moving abroad, helping students, assisting students in preparing for IELTS exam. And it's been more than 5 years. I have been offering my online sessions all over the globe. Uh, Pakistani students are connecting on my platform from every part of the world, wherever they are living. And if they need a IELTS, they join me live on Zoom. This session is going to be very productive, very fruitful, and it's going to be very helpful for those students who are thinking of appearing in IELTS exam, who are preparing for IELTS exam, and who are going to step in IELTS preparation. There are so many things which you must keep in mind before you start IELTS preparation. चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए और मेरा हाथ जोड़कर विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अर्जी है, प्लीज डोंट कंसीडर YouTube your teacher. You cannot replace a teacher with a book. You cannot replace a teacher with a YouTube. Books are always helpful material. They facilitate us. YouTube also facilitates us. It's a blessing. It's a blessing for us where we get stuck, we take help from YouTube. I always upload my lectures on YouTube, and you will be shared a link from my YouTube channel. That will be very helpful for all of you. But don't consider YouTube a teacher. If you want free preparation, buy books, but they are also not free. You will have to pay for them. But if you want free, you can download them from different resources. They all are available on internet as well as I told last week. मैंने last week एक आपको बात बता दी, मैंने prediction नहीं दी थी, मैंने बता दिया था. मेरे last week का session उठाकर देख लीजिएगा कि IELTS की फीस में इजाफा होने वाला है. और इस दफा जो इन्होंने इजाफा किया है वो बड़ा खतरनाक इजाफा किया है. वो मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूँ, एंड यू विल बी शॉक्ड एंड ड्रॉप्ड. हमने कहा था कि IELTS की फीस में तकरीबन 4-5 हज़ार रुपए का इजाफा होगा, और वो हो चुका है. सर आप कौन है, कहाँ से हैं? बेटा, दिस इज टू सर्टिफाई दैट SKH ऑनलाइन एजुकेशन इज एन अप्रूव्ड IELTS एप्लीकेशन कलेक्शन सेंटर ऑफ AU पाकिस्तान. इसीलिए हमारे पास अंदर की खबर पहले आ जाती है कि भाई आप बता दें अपने स्टूडेंट्स को. कुछ लोगों के मैंने 12,000 रुपए बचा लिए. वो कैसे, देखिए अभी बताता हूँ किस तरह से मैंने 12,000 रुपए बचा लिए. मेरे जितने भी सेशंस होते हैं वो बेटा लाइव जूम ऐप के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं. अच्छी बात यह है कि लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के सेशंस हम रिकॉर्ड करते हैं, और कोशिश रहती है कि वेरी सेम डे आपसे शेयर कर दिया जाए, ताकि आप अगर किसी वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी हो या फिर आप कहीं मसरूफ हो, वो सेशन स्किप हो जाता है, आप उसको वेरी सेम डे देख लें या वेरी अर्ली मॉर्निंग देख लें, और जो असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं आप उसको फॉलो कर लें. ठीक है, तो अगर आपके जहन में ये बात है, रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलती हैं आपको. बस स्पीकिंग के सेशन में आपका होना लाजमी होता है, बिकॉज स्पीकिंग में आप होंगे, बोलेंगे, आपको फीडबैक मिलेगा. if you are not available in speaking, it's no use recording a speaking session. But I always advise the students to record their audio, कि अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करें, क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं ना तो उसकी गलती फौरन पकड़ लेते हैं. तो आप फिर जब कल को रिकॉर्ड कर लेंगे अपने आप को, फिर आप अपने आप को सुने, आपको गलती नजर आएगी. तो ये मेरी हमेशा एडवाइस रहती है, व्हेन यू आर इन योर स्पीकिंग सेशन, रिकॉर्ड योर स्पीकिंग. No matter 2 minutes or 3 minutes. There are so many questions the students have in their mind. सर मेरे लैंग्वेज स्किल्स कमजोर है, मैं क्या करूं, IELTS कर लूं, 7 बैंड आ जाएंगे. 7 बैंड का मतलब मैं आज आपको समझाऊंगा. 7 बैंड का मतलब क्या होता है. 7 band means that you speak English like a native speaker. You have good writing skills, you have good speaking skills, you have excellent vocabulary, you have excellent sentence structure, and you, अगर ये सब कुछ आपके पास है, if you have all these things, it means that you have completed a language course from any
well reputed language academy. You have spent 3 months, 6 months in a language center or in any online language course. तो मेरा पहला सवाल, आप लोगों का पहला सवाल, सर, इज आइल्स लैंग्वेज टेस्ट 100% इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम? सर, इज इट ऑल्सो एन IQ टेस्ट? 100%। ये आपकी जहानत का टेस्ट है। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि बेटा आपका जहीन होना भी जरूरी है। सर, मैं जहीन हूँ, मेरे लैंग्वेज स्किल्स अच्छे नहीं। फिर कोई एक चीज तो हो ना बेटा, एक पहिया तो लगा हुआ गाड़ी के अंदर। अब आप कहें सर मैं जहीन नहीं हूँ, ना मेरे लैंग्वेज स्किल्स अच्छे, गाड़ी के दोनों पहिए है ही, और आप चाह रहे हैं आपका स्कोर आ जाए 7, तो बेटा हाउ इज इट पॉसिबल? मैं आपके गाड़ी का एक पहिया बन सकता हूँ, मैं आपके लैंग्वेज स्किल्स और आप मुझे दोनों जिम्मेदारियां दे दें, सर आप बस IQ मेरा लेवल इंप्रूव कर दें। तो दैट्स वेरी चैलेंजिंग कि आपके अंदर जहानत भी नहीं है, लैंग्वेज स्किल्स भी अच्छे नहीं है, और फिर आपको आइल्स करना है। रास्ता है, एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन। मेरे सेशन साथ रहिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा, क्योंकि अब आइल्स का एग्जाम हो गया है और महंगा। सुनी नहीं होगी अभी आपने आइल्स की फीस जितनी हो गई है, अभी आने वाली है आज के सेशन में। सर, इज इट कंपल्सरी टू हैव कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज टू क्लियर आइल्स? 100%। पता नहीं स्टूडेंट्स को कौन मिसगाइड कर देता है कि जाओ जाकर आइल्स की तैयारी कर लो। कोई ये क्यों नहीं कहता है जाओ जाकर लैंग्वेज को इम्प्रूव करो ताकि तुम्हारा आइल्स क्लियर हो जाए? और कुछ बच्चे बेवकूफी कर देते हैं, दे कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, दे कैन नॉट राइट गुड इंग्लिश एंड दे स्टार्ट आइल्स प्रिपरेशन, और फिर वो कहते हैं वी आर नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई कैसे होंगे? आप आइल्स की तैयारी करने में फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज ही नहीं आती है, यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। एक जनरल स्पीकिंग होनी चाहिए ना आपके पास। मेरे पास बहुत सारे वॉइस नोट आते हैं, सम स्टूडेंट्स दे कैन स्पीक इन इंग्लिश। इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश देन यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योरसेल्फ। मैं इंग्लिश ही नहीं बोल सकती सर, फिर हम क्या करेंगे भाई, तैयारी क्या करवाएंगे? सर मैं लिख ही नहीं सकती, फिर वो एक मसला है। फिर क्या करें सर, कोई है आपके पास ऐसा वार्ड जहाँ पर हमें आप एडमिट कर दें और हमारा इलाज हो जाए? बिल्कुल है। किस तरह से हम आपको फिर तैयारी करवाते हैं, हमारा तरीकेकार क्या होगा? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर आइल्स? जहन में बिठा लें, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी है जिनकी अभी पढ़ाई चल रही है, जो सोच रहे हैं आने वाले वक्तों में आइल्स करना है। बेटा 3 महीने का प्लान लेकर आ। जब तुम्हें आइल्स की तैयारी करनी हो ना, तो तुम्हारे जहन में हो कि आई हैव 3 मंथ्स। यहाँ रातों रात बाबा जानी से बात होती है, बस बेटा अब तुम आ जाओ, निकलो पाकिस्तान से, दे दो आइल्स 2-3 हफ्तों में। अब ये बस, अब हम हमारे गर्दन पे छुरी रख दी जाती है, 3 महीने में 3 हफ्ते में आइल्स की तैयारी कराएं वरना। अरे भाई देखो बेटा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर आइल्स? आइल्स की तैयारी में मैं 1 हफ्ते में करा दूं। आपके लैंग्वेज स्किल्स आउट क्लास है। आर यू गुड एट इंग्लिश? आर यू एक्सपर्ट इन इंग्लिश? आर यू एन एक्सलेंट यूजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? इफ यस, 1 वीक इज एनफ। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे तैयारी करवाई है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया चाय पर, खाना भी मंगा लिया, सर बैठे आप 3 घंटे उनकी उनसे सिर्फ बातचीत की, उन्हें हर बात समझाई है, पैटर्न। दे वर एक्सलेंट इन कम्युनिकेशन, दे गॉट 7+। एक बच्चा रोता हुआ फोन करता है, सर मेरे भाई ने रजिस्ट्रेशन करवा दी, 1 हफ्ते बाद पेपर है, मैं क्या करूं? सर आप मेरी मदद कर दें। मदद करते हैं हम लोगों की, ऐसी बात नहीं है। पैसे के पीछे हम नहीं भागते, लोग हमारे पीछे भागते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उससे कहा बेटा आपके इंटर के रिजल्ट्स क्या थे? सर आई गॉट A1 ग्रेड। उसने अपने रिजल्ट्स भेजे, ही गॉट A1 ग्रेड इन इंग्लिश। मैं कहा बस बेटा आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरे कुछ 1 हफ्ते के लेक्चर में ये सुन लो। ही गॉट हिज डिजायर्ड स्कोर, उसकी रिक्वायरमेंट थी 6.5। देखो काबिलियत हो तो आप आइल्स क्लियर कर लेते, लैंग्वेज स्किल्स आपकी काबिलियत का ही हिस्सा है। अब आपके अंदर काबिलियत भी नहीं है, लैंग्वेज स्किल्स भी नहीं है, फिर परेशानी है। सर इज SKH रियल और फेक? ये सवाल आप जाएं खुद वेरीफाई करें, यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, ChatGPT पहचानिए भाई। ChatGPT भी हमें जानता है। लिखिए हु इज ख्वाजा सीवर रहमान, SKH आइल्स प्रिपरेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट इट? बता देगा आपको। व्हाट इज आइल्स फी? बढ़ गई है भाई, मैंने कहा था रजिस्ट्रेशन करवा लो। यूके जाने वालों के मैंने 12,000 रुपए बचाए हैं, कुछ 2-3 बच्चे दुआएं दे रहे हैं, सर आपने 12,000 रुपए बचा लिए। हु कंडक्ट्स आइल्स एग्जाम?
कौन आइल्स का एग्जाम कंडक्ट करता है? सर अभी आपको गाइड करेंगे। हाउ लॉन्ग डज आइल्स सर्टिफिकेट रिमेन वैलिड? 2 साल। देखो जब भी मैंने कहा अगर अभी आपके पास टाइम है ना, 2 साल तक वैलिडिटी है। लोग पता नहीं क्यों चांद रात को उन्हें पता चलता है कि मुझे आइल्स करना है। देखो हम बेटा करियर प्लान, हमने करियर काउंसलिंग भी की है, हम अपना करियर पहले से सोचते हैं कि हमें ये करना है। लेकिन मैंने ये देखा है कि हम लोग घड़ी की चौथाई में एट 11 आवर हमें पता चलता है हमें आइल्स करना है, और फिर आप अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। मैंने 22 साल के अंदर बच्चों के बहुत पैसे बर्बाद होते देखे। सर 3 हफ्ते, 2 हफ्ते दे दो, हमारा क्या है, हमें हम तुम्हें सही गाइडलाइन दे सकते हैं। हाँ अभी ऐसी भी है, एक कहानी ऐसी भी है मेरे पास। अभी लास्ट वीक भी मैंने ये शेयर की थी। एक खातून ने राब्ता किया, उन्होंने कहा सर मुझे आइल्स करना है, 6.5 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे नहीं थे, पढ़ी लिखी थी। मैं कहा आप 4 वीक्स, 4 to 6 वीक्स का सेशन लें, बट शी वॉज इंसिस्टिंग फॉर 4 वीक्स। मैं कहा ठीक है जैसे आपको बेहतर लगे। जाकर डायरेक्ट आइल्स में अपेयर हो गई। 1 हफ्ते के मेरे को बस यही वार्म अप क्लासेस ली, मास्टर क्लासेस, और जाकर टेस्ट दे दिया। हम पूछते रहे कब लोग ये दाखला, रिजल्ट शो कर दिया सर आई गॉट 6.5। ये आपकी जो 3 4 5 क्लासेस थी ना, मैं समझ गई क्या करना है। देखो मैं फिर कहूंगा ये है आपका IQ। मैं जिस तरह से आपको 1 हफ्ते में रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग करवाता हूँ ना, 1 हफ्ते में आप 7+ पर आ जाते हैं अगर आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे। राइटिंग में आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि राइटिंग में टॉपिक्स बहुत सारे हैं। हर हफ्ते हम 2 टॉपिक्स पढ़ाते हैं, 12 टॉपिक्स हैं, तो 12 टॉपिक्स के लिए 12 क्लासेस चाहिए, 6 हफ्तों में मुकम्मल होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटराइज्ड आइल्स एंड पेपर बेस्ड आइल्स? अगर तो बेटा जो पाकिस्तान से अभी इस वक्त, नाउ आइल्स इज ऑन कंप्यूटर, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो UAE और UK से मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड है। बेटा याद रखें, आप आइल्स 2 फॉर्मेट पे दे सकते हैं, आइल्स ऑन पेपर, आइल्स ऑन कंप्यूटर। बट मेरी अब सबको एडवाइस है आइल्स ऑन कंप्यूटर ही दे, दैट्स वेरी इजी। और पाकिस्तान में तो अब आइल्स ऑन कंप्यूटर ही होता है, आइल्स ऑन पेपर खत्म हो गया इस साल से। मार्च में आप ही पे करता है। So what is the difference between academic IELTS and general IELTS? Academic IELTS for student visa, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एकेडमिक आइल्स। सर मैंने अभी सोचा नहीं है, तो सोच लो बेटा, तैयारी करने से पहले सोच लो एकेडमिक आइल्स करना है या जनरल आइल्स करना है, क्योंकि इसमें राइटिंग के पार्ट में डिफरेंस आता है। राइटिंग के अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें 2 पार्ट्स आते हैं, एक टास्क 1 और एक टास्क 2। टास्क 1 डिफरेंट होता है, जनरल आइल्स में लेटर्स होते हैं, एकेडमिक आइल्स के अंदर रिपोर्ट्स होती है। तो आपको पहले फैसला करना है कि आपको इमिग्रेशन पे जाना है या स्टूडेंट वीजा पे जाना है, क्योंकि ये आप पहले फैसला करते हैं, ठीक है। अच्छा फिर इसके अंदर एक और टेक्निकल बात है, सर मुझे अभी फैसला नहीं किया मैं जर्मनी के यूरोपियन कंट्रीज के लिए अप्लाई करूं, मैं जर्मनी जाऊंगी या फिर मैं UK के लिए अप्लाई करूंगी। सोच लो, तैयारी शुरू कर दो। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अगर आपने आइल्स UKVI किया है तो आप UK के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइल्स UKVI पूरी दुनिया में काबिल कबूल है, लेकिन अगर आपने सिर्फ आइल्स एकेडमिक कर लिया और कल को आपका UK का प्लान बन गया, नॉट एक्सेप्टेबल। बस ये इनकी एक बिला वजह की बात है। आइल्स UKVI फॉर UK ओनली, वो कंपलसरी है, आइल्स UKVI फॉर UK। लेकिन जर्मनी के लिए आइल्स UKVI चल जाता है। आइल्स एकेडमिक कर लिया सिर्फ तो वो UK में नहीं चलेगा, बाकी पूरी दुनिया में चल जाएगा। इसी तरह से आइल्स जनरल का भी बता दूं, आप UK के लिए अप्लाई कर रहे हैं आइल्स जनरल UKVI, और वो कहीं और एक्सेप्टेबल नहीं है। कनाडा के लिए आपको आइल्स जनरल करना पड़ेगा। मेरे 2 स्टूडेंट ऐसे मैंने देखे हैं, उन्होंने आइल्स UKVI किया UK के लिए, वो फिर उन्हें लग रहा था कनाडा के लिए एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप आइल्स जनरल लेकर, जबकि पेपर पेपर पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उनका कुछ मार्किंग स्कीम है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का डिफरेंस है। सर आपकी क्या फीस है, क्या क्लास टाइमिंग है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कोई पोर्टल है, कोई LMS है, कोई मटेरियल है, आप मॉक टेस्ट लेते हैं। मैंने आपसे आज मॉक टेस्ट के लिंक्स शेयर किए थे। कुछ लोगों ने मेरे ख्याल से व्हाट्सएप का ग्रुप देर से ज्वाइन किया है, तो शायद उनके पास मॉक टेस्ट ना आए हो। लेकिन आप किस तरह से मॉक टेस्ट देते हैं वो मैं आपके पास आज के सेशन के बाद फिर शेयर कर दूंगा, आप लाजमी तौर पे देख लें। ठीक है भाई।
गौरज, चले कुछ लोग अभी भी हमें अच्छा भाई, आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो सर, इज इट पॉसिबल टू गेट 9 बैंड इन रीडिंग एंड लिसनिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ऑनलाइन सेशंस में सर ने पढ़ाना शुरू किया ना, तो 9 बैंड की पॉसिबिलिटी बन गई। मैं देखो, मेरी आदत है बेटा, अल्लाह के नाम से आज का सेशन शुरू किया है, झूठ बोलते नहीं है सर। जब हम फिजिकल क्लासेस लेते थे ना, तो हम एक किताब से पढ़ाते थे, एक किताब से। यानी कि जो भी लेटेस्ट बुक चल रही होती थी ना, जैसे आजकल चल रही है आइल्स 19 चल रही है, और कहीं पर चल रही है आइल्स 18। आइल्स 18 जनरल वालों की भी अवेलेबल है और एकेडमिक वालों की भी। तो ज्यादातर टीचर्स इस वक्त पाकिस्तान में आइल्स 18 से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो ना आइल्स 18 से पहले आएंगे ना बाद में जाएंगे, बस वो आइल्स 18 पर रहेंगे। उसमें 4 टेस्ट होते हैं, 4 हफ्तों में 4 टेस्ट करवा दें, बहुत बड़ी बात है। और हम फिजिकल क्लासेस में एक सवाल को हफ्ते में एक दफा डिस्कस कर लिया, तो अब वो दोबारा डिस्कशन में नहीं आ पाता। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को एक दफा समझा दिया, दोबारा क्यों समझाएंगे भाई? पढ़ा दिया एक टॉपिक। फिजिकल क्लासेस में 16 साल पढ़ाया है मेरे, पता नहीं कितने सारे दोस्त और भी पढ़ाते हैं। सबका पढ़ाने का फॉर्मेट एक ही है, एक सवाल एक हफ्ते में डिस्कस कर लिया, अल्लाह हाफिज। इसी तरह से लिसनिंग में भी ये होता है। अच्छा, मैंने अपने फिजिकल करियर के अंदर 7.5 तो देखा था, 8 भी याद नहीं कि मैंने लिसनिंग और रीडिंग में देखा हो। क्योंकि हम इतनी मेहनत नहीं करते थे जितनी मेहनत ऑनलाइन सेशंस में होती। जितनी हमारे अंदर का जो नॉलेज का तूफान है ना, वो ऑनलाइन सेशंस में मैंने जितनी नॉलेज डिलीवर की है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने 16 साल में नहीं कर सका। उसकी वजह बता रहा हूँ। फिर उसके बाद राइटिंग, राइटिंग में मैक्सिमम 7.5 स्कोर कर सकते हैं, और ये बात जहन में बिठा लें। पता नहीं कौन कह देता है कि 8 बैंड लेकर आ जाओ। 8 मैंने तारीफ में नहीं देखा, बड़ी मुश्किल से एक स्टूडेंट ढूंढा मैंने, पता चला वो 20 साल से कंटेंट राइटर था, लाहौर का एक स्टूडेंट था। 7.5 मैक्सिमम है, और ये भी बता दूं, आपकी राइटिंग की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 7 है पूरी दुनिया में, इससे ज्यादा नहीं है। तो आपने 7 और 7.5 ले लिया, यू आर जीनियस, नॉट ब्रिलियंट, मोर देन ब्रिलियंट, यू आर जीनियस इफ यू हैव गॉट 7.5। हाँ, रीडिंग और लिसनिंग में आप मेरे साथ अपना वक्त स्पेंड करें। मैं 6 हफ्ते आप मेरे साथ रहते हैं, आई एम श्योर दैट यू विल क्रॉस 7। आप 6 हफ्ते मेरे साथ रहें, यू विल क्रॉस 7। आपका टारगेट 8 है, आप मेरे साथ 8 वीक्स रहे। मैं बुक 11 से पढ़ाना शुरू करता हूँ, 18 तक जाता हूँ। 19 और 20 पे भी मेरे लेक्चर्स आ जाते हैं। लेकिन मैं कम से कम 8 किताबें पढ़ाता हूँ 8 हफ्तों में। अब 8 हफ्तों में जब 8 किताबें पढ़ोगे, तो फिर क्या होगा तुम्हारा, सोचो। और अब तो मैंने 19 और 20 भी ऐड कर दिया एकेडमिक वालों की, क्योंकि वो जनरल वालों की 19 आ गई है, लेकिन हमारे पोर्टल पे 19 नहीं आई है जनरल वालों की। अब देखें वो कब अपलोड होती है, हो जाएगी तो वो भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। 9 बैंड आप रीडिंग और लिसनिंग में ले सकते हैं, मुझे अपने पढ़ाने पे इतना पूरा यकीन है। इट्स पॉसिबल टू गेट 9 बैंड इन रीडिंग एंड लिसनिंग इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे, इफ यू अपीयर इन मॉक टेस्ट वीकली ऑन वीकली बेसिस। रीडिंग के अंदर सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स चलती हैं, लिसनिंग के अंदर आपका फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर आपकी ग्रामर, आपकी वोकैब्युलरी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपकी स्पेलिंग्स, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है, और यही सब बर्बाद हुआ हुआ है। राइटिंग और स्पीकिंग में मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि राइटिंग के अंदर बच्चा जब जाता है सेशन के अंदर, वो कहते हैं मिस इम्पोर्टेंट बता दे ऐसे के, क्योंकि हमने बेटा मैट्रिक, इंटर, बीकॉम, बीएससी, बीए ऐसे राइटिंग की है रट्टा लगाकर, इंपॉर्टेंट लगाकर। अभी भी मैसेजेस आते हैं,
वो इम्पोर्टेंट बता दें क्या हो गया। पाकिस्तान का पेपर नहीं है बेटा, आपकी जहानत का पेपर है। आपको ऐसे राइटिंग आनी चाहिए, स्पीकिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, आपको बोलना आना चाहिए। यू मस्ट स्पीक ऑन एवरी टॉपिक। तो इट इज पॉसिबल टू गेट 8, 8.5, 888, 7 की रिक्वायरमेंट सबसे हाई होती है। और हम जिस लेवल पर आपको पढ़ाते हैं तो आपको हम प्रिपेयर करते हैं 888, 7 के लिए। मेरे लिए 6.5 और 7 कोई चैलेंजिंग स्कोर नहीं, ये बात जहन में बिठा लें। आपके लिए 5.5 और 6 कोई चैलेंजिंग स्कोर नहीं। आपका चैलेंजिंग स्कोर स्टार्ट होता है 7 से, जब आपको हर मॉड्यूल में 7 चाहिए। दैट्स अ चैलेंजिंग पार्ट, क्योंकि राइटिंग में 7 आने का मतलब है यू आर एन एक्सेलेंट यूजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। And I assure you that you will get your desired score if you follow my footprints. देखो, कामयाबी का रास्ता यही होता है कि आप उस इंसान के नक्शे कदम पे चलें जो कामयाब है। अब 22 साल से हमने कोई दूसरा काम तो किया नहीं। लो भाई, सामने आ गई जो राज हमने आपको पिछले हफ्ते फाश कर दिया था कि आपकी आइल्स के एग्जाम की फीस में इजाफा होगा। हमेशा आइल्स यूकेवीआई की फीस होती थी, लास्ट वीक बता दूं, ये 60,000 थी। और 60,000 ये थी, और आइल्स जनरल और आइल्स एकेडमिक की फीस थी 67,000। अब जो बढ़ी है तो आइल्स यूकेवीआई चली गई है 72,000 के ऊपर। आप किसी भी शहर में दे दें जाकर। और आइल्स जनरल और आइल्स एकेडमिक कुछ शहरों में 71,300 है, और कुछ शहरों में पूरी 72,000। बराबर कर दिया इन्होंने। अब आप अपना शहर देखें कि आपका शहर कौन सा है और आपका पेपर कब हो सकता है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर रोजाना पेपर हो रहे हैं भाई, रोजाना बिला नागा। तो रजिस्ट्रेशन की टेंशन नहीं लेनी है, अब तो बढ़ गई है फीस। अब बेवकूफ होगा वो बच्चा जो 4 हफ्ते की तैयारी के बाद ये एक्सपेक्ट कर ले अपने आप से कि मैंने 5.5 मेरे पहले थे और मेरे 7.5 आ जाए। 7 इज अ चैलेंजिंग स्कोर, मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ। अब इतना महंगा पेपर, उसके बाद एक धचका लग गया ना, तो 3 महीने से पहले दोबारा पेपर देने की हिम्मत नहीं आएगी, ये बात याद रखना। मैंने देखे बच्चे अभी जो रीअपियर के केसेस आ जाते हैं या जो अपना डिजायर्ड स्कोर नहीं ले पाते, वो बच्चे 3 महीने बाद ही रिटर्न होते हैं कि सर अब दोबारा देने। बहुत मुझे सदमा हुआ। तो वो सदमे से बचने के लिए भाई 3, 4 से 6 हफ्ते कर लो, 6 से 8 हफ्ते कर लो, ताकि तुम्हारा कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व ना रहे। हम तो हर हफ्ते ये बात समझाते हैं, समझ आने वालों को आ जाए समझ, जो खतरों के खिलाड़ी हैं वो कहते हैं नहीं सर हो जाएगा। चले, हम आपके साथ हैं, हम तो सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं 4 हफ्ते वाली। अभी आया है, देखो एक बच्ची ने लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल किया, 4 हफ्ते तैयारी की, आ गया उसका 7, हर मॉड्यूल में 7 मारा। अभी अभी का एक और प्रीवियस वीक का एक मेरा स्कोर अभी आया हुआ। मैं, मेरी आदत नहीं है कि लगाते रहो स्कोर फेसबुक के ऊपर, आते रहते हैं, पढ़ाने में मसरूफ रहते हैं। एक स्कोर मेरे पास शायद पिछले हफ्ते आया था, अभी आपसे शेयर करते हैं। डबल 8 मारे उन्होंने, रीडिंग के अंदर भी और लिसनिंग के अंदर भी। देखो सर की बातें, सर ने कहा है कि 6 से 8 हफ्ते साथ रहो, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो तुम्हें मिल जाएगी। उनको और अच्छा स्कोर आ जाता, उन्हें खुद एहसास है इस बात का, सर ये स्कोर और अच्छा हो जाता। बस मुझे पता है कि मैंने कहाँ गलती करी, मैंने स्पीकिंग के अंदर थोड़ी सी कोताही कर दी थी। क्योंकि जो 8 लेता है ना, वो स्पीकिंग में 8 मार्क सकता है। इनका स्पीकिंग में 7.5 था, और राइटिंग में इनका 7 था। 7.5 और 7 मैंने आपसे शेयर किया। और ये मेरे ख्याल से यूके में अपेयर हुई थी, हमारी एक स्टूडेंट है यूके से है, वहां पर ये अपेयर हुई, मैंने आपसे शेयर किया। तो बेटा इट इज पॉसिबल टू गेट 8 बैंक। हमें तो ये इतना यकीन से हम बात कह देते हैं आ जाएगा, लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू वर्क हार्ड। आप मेहनत करेंगे तो ऐसा हो सकता है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। टाइम फैक्टर जब ले आते हैं ना, अब मेरे पास इतना टाइम है बस, तो फिर हम बेटा, फिर हम क्या कर सकते हैं, आपको कह देते हैं हो जाएगा, लेकिन सर हर बात सच बताते हैं। देखो टाइम फैक्टर को साइड में करो, अपने आप को देखो वेयर यू आर स्टैंडिंग, अपनी इवेल्युएशन करो, मुझसे करवाओ। मैंने आपको मॉक टेस्ट दिए,
अभी देखें, दोबारा शेयर कर देता हूँ। जाओ जाकर पेपर दे दो। ये जनरल वालों का भी शेयर कर रहा हूँ और एकेडमिक वालों का भी शेयर कर रहा हूँ कि जाओ जरा जाकर मॉक टेस्ट दे दो। मैं इस पोर्टल का आपको लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। इस पोर्टल का आपको आज मैं तोहफतन आपको एक दिन की एक्सेस दे दूंगा, ताकि आप स्पीकिंग का मॉक टेस्ट दे सकें। आप देखें कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं भाई। मैंने एक जर्नल वालों का भी भेजा है मॉक टेस्ट। मेरे सारे मॉक टेस्ट पोर्टल पर होते हैं, ठीक है ना। आप जितने भी टेस्ट देंगे पोर्टल पर होंगे, स्पीकिंग का, लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का। आप मुझसे राइटिंग्स चेक करवाना चाहें, आप मुझसे भी अपनी राइटिंग्स को चेक करवा सकते हैं। जो राइटिंग आप पोर्टल पे सबमिट करें वो सर को भी सेंड करें, ठीक है। आप चेक कीजिएगा, ठीक है। इमन कलेक्ट ग्रुप लिंक आफ्टर द क्लास। अच्छा भाई, अब पेशावर, मुल्तान, गुजरात, हैदराबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद ऑलमोस्ट एवरी डे तकरीबन रोजाना पेपर हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन की टेंशन नहीं लें कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब तैयारी हो जाए 3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। फैसलाबाद, मीरपुर और सियालकोट एवरी सैटरडे एंड संडे। सियालकोट में एवरी सैटरडे। बाकी जितने शहर हैं देखो उनमें डेट्स अनाउंस कर दी। एबटाबाद, गुजरांवाला, बावलपुर, साहिवाल, सरगोदा, सक्कर, मंडी बहाउद्दीन, कोयटा और शेखुपुरा में कुछ डेट्स पर अवेलेबल। तो वहाँ पार्टिसिपेंट्स बहुत कम रहते हैं। टेस्ट की फीस में इजाफा हो गया है। अब टेंशन नहीं लेनी, अब तो इसी टेस्ट के साथ आपको जाना पड़ेगा। सर, इज इट पॉसिबल टू get or improve 5.5 to 7.5? Yes, it is possible to if you improve your language skills. आगे चलते हैं। सर, राइटिंग का क्या फॉर्मेट है? आप लोग राइटिंग किस तरह से पढ़ाते हैं? राइटिंग का आप प्लान नोट कर लीजिए, टॉपिक नोट कर लीजिए, और एक मैं आपसे फाइल शेयर कर रहा हूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। मेरी आपको एडवाइस है, अगर आप राइटिंग के सेशन तक जाते हैं थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे को आपका होगा डिस्कशन सेशन, देखिए डिस्कशन ऐसे। तो मेरी आपको एडवाइस है कि देखो, सिर्फ मुंह उठाकर राइटिंग की क्लास में मत आया करो। मैं हमेशा कहता हूँ, वो अच्छा लगे या बुरा लगे, बस आ गए राइटिंग की क्लास में, फिर कहते हैं देखो समझ नहीं आ रहा। मैं एक सवाल करता हूँ कि कभी आपने कभी ऐसे रीड किए? कभी ऐसे रीड किए? तो लोग कहते हैं नहीं, हमने तो हमेशा ऐसों के रट्टे लगाए। तो बेटा, जब आपने ऐसे लिखा ही नहीं है, अब आप चाहते हैं कि बस एक सेशन के अंदर हम क्या करें, हम जो है वो हमें समझ आ जाए। भाई, आप पहले कुछ रीड तो करें ना। रीडिंग मटेरियल मेरे पास बहुत होता है। मैंने आपको एक बुकलेट, मास्टर बुकलेट शेयर की है, तोहफा है मेरा आज का, ठीक है ना। आपके व्हाट्सएप पर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, वो आप लोग उसमें से निकालिएगा डिस्कशन ऐसे। जब आप इस थर्सडे को क्लास में जाएंगे ऐसे राइटिंग की, तो अब आपको ऐसा ना हो कि यू आर गोइंग ब्लैंक। क्या होता है डिस्कशन ऐसे का फॉर्मेट, क्या है? कम से कम उसमें 5 सैंपल लेटर्स होंगे, उसको रीड कर, सैंपल ऐसे होंगे, रीड कर कर आना, और इसको सेव करके रखो। जब तुम्हारा राइटिंग का सेशन होता है, इसी सीक्वेंस में सेशन चलेंगे। डिस्कशन से स्टार्ट होगी आपकी क्लास, आगे देखो पाई चार्ट। तो पाई चार्ट को पढ़कर आओ भाई, पाई चार्ट के सैंपल आंसर्स पढ़कर आओ, तुम्हारा जहन बना हुआ हो कि अच्छा हाँ, मैंने पाई चार्ट के लिए कुछ जवाबात मैंने रीड किए। डोंट कम ब्लैंक, वरना आपको समझ ही नहीं आएगी बात। बिकॉज यू आर अटेंडिंग राइटिंग सेशन वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। ये बात आप एग्री करेंगे इस बात से। राइटिंग की क्लास जिंदगी में कभी नहीं ली है, पहली दफा तो लेंगे। हमने तो ऐसे राइटिंग की कभी जिंदगी में किसी ने पढ़ाई नहीं, समरी राइटिंग तो पढ़ाई नहीं है, लेटर राइटिंग पढ़ाई नहीं है, एप्लीकेशन राइटिंग पढ़ाई नहीं है, सीवी राइटिंग पढ़ाई नहीं है। हम तो राइटिंग पढ़ते ही नहीं, हम तो रट्टे लगाते हैं। अब आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बस एक दिन में सर जादू कर दें। जादू होगा जब आप सर के पूरे बात पे अमल करेंगे। आज से असाइनमेंट दे दिया है, नोट कर लो पेपर पे, डिस्कशन ऐसे, पाई चार्ट उस किताब में से पढ़कर आना। ये पहला मटेरियल है तोहफतन। मेरे पास इसके बाद एक और भी रिफाइंड और मटेरियल है, वक्त के साथ साथ दूंगा। कुछ मटेरियल मांगने पे देता हूँ, ठीक है ना। बगैर मांगे कभी कभार कुछ भी नहीं देते हैं।
चले, अब बाकी अपना रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग का नोट करें। आपकी रीडिंग और लिसनिंग की जो क्लास होती है वो 7:45 to 9 होती है, और सर का पढ़ाने का एक फॉर्मेट है। कल आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, कल ज्वाइन करने के लिए आपको अटेंडेंस का एक स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको कल की क्लास की एक्सेस मिलेगी। अभी आपके पास वो स्क्रीन आ जाएगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रीडिंग का प्लान आपके सामने है। ब्लैंक्स, मंडे को ब्लैंक्स, लिसनिंग में भी ब्लैंक्स आती है तो हम मंडे को ब्लैंक्स फॉलो करते हैं। ट्यूसडे को ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, लिसनिंग में ब्लैंक्स, कभी ब्लैंक्स कभी मैप्स। वेडनेसडे को मैचिंग इंफॉर्मेशन, दोनों सवाल हर जगह आते हैं। थर्सडे को एमसीक्यूज, फ्राइडे को हम लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ पीपल, और लिसनिंग का मेरा सेशन मंडे टू थर्सडे चलता है। तो जो ट्यूसडे वाली क्लास होती है कभी ब्लैंक्स आती है और कभी मैप्स आते हैं। स्पीकिंग का हमारे सेशन का एक तैयारी का फॉर्मेट है। जब आप स्पीकिंग के सेशन में जाते हैं तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हम आपको बुकलेट प्रोवाइड करते हैं। पिछले हफ्ते की बुकलेट दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अंदाजा हो जाएगा, अच्छा भाई कि किस तरह की बुकलेट देते हैं। इस हफ्ते की बुकलेट आपके पास कल सुबह आ जाएगी, ठीक है ना। एडिशन 2 आपके पास आ रहा है, इस हफ्ते का एडिशन 3 है। एडिशन 2 आ गया आपके पास, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि सर जो बात कह रहे हैं उस वो क्या है। आपको हर हफ्ते की एक बुकलेट मिलती है और आप उससे तैयारी करते हैं। जैसे एडिशन 2 आपके पास आ गया है, आप इससे तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद मंडे को आप पार्ट 1 पर बात करेंगे। बेहतर ये होगा कि आप उन 10 टॉपिक्स को पढ़कर रहें ताकि आपको पता चले कि सवाल का जवाब कैसे दिया जाता है। ये थोड़ी नहीं टीचर आएगी क्लास में और आपको बताएगी आप ऐसे बोले, तो फिर बोलोगे कब? हम स्पीकिंग की क्लास में बोलने का मौका देते हैं, बोलो। हम नहीं बोलते, हम कहते हैं बोलो। अब आप नहीं बोल रहे, दैट्स योर प्रॉब्लम। आपको बोलना नहीं आता तो फिर क्यों आए भाई? मैं तो बोल ही नहीं सकती, तो जाओ बेटा लैंग्वेज क्लास में जाओ। मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, तो जब बोल नहीं सकते तो बेटा फिर तैयारी किस बात की हो रही है? आपको लैंग्वेज क्लास में बोलना सिखाया जाता है। आइल्स के अंदर आपको उस फॉर्मेट में बोलने का मौका दिया जाता है, बोलो। पार्ट 1 के अंदर एक सवाल होता है, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव। हम अब आप कहेंगे आई हैव 5 फैमिली मेंबर्स। नो, you don't have to answer like this. You have to come up with 3 sentences and you have to speak for 15 seconds for each question. Okay, well, I have a big family and I am the last one. I have 5 family members, my mom and dad, 2 brothers, 2 sisters, and including me. अब हो गए 3 sentences 15 सेकेंड। फिर एग्जामिनर आपसे दूसरा सवाल करेगी। पार्ट 1 के अंदर 3 डिफरेंट टॉपिक्स आ सकते हैं and you will be asked 9 different questions. एक बच्ची जो 8.5 लेती है, मैंने कहा तुमने क्या किया भाई, 8.5 मारा है तुमने, बताओ हमें। सर आई केप्ट स्पीकिंग। यू हैव नो वर्ड लिमिट, कोई वर्ड लिमिट नहीं है। मैंने तो 3 सेंटेंसेस का वो रिक्वायरमेंट है। यू हैव टू सबमिट योर आंसर अप टू 3 sentences. That's a requirement. But if you are speaking 4, 5, 6, 7 sentences, that's not a negative thing. You are speaking. That's your speaking test. No word limit, no time limit. Let उस बच्ची के एक अल्फाज मुझे याद है, तुम लोग भी याद रखना। सर आई डिड नॉट लेट द एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन। मैंने एग्जामिनर को सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि वो आपकी स्पीकिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस जज कर रहे हैं वो आपको। बोले आप, ठीक है? फिर एग्जामिनर आपको खुद रोकेगी, बस बहन बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2। 2 मिनट आपको बोलने की आदत होनी चाहिए। 1 मिनट प्रेपरेशन का मिलता है, 2 मिनट बोले। हर ट्यूसडे को आपका पार्ट 2 का सेशन होता है। आपके 10 क्यू कार्ड्स की प्रैक्टिस करवाता हूं मैं हर ट्यूसडे को। फिर आपके पास वेडनेसडे जो क्यू कार्ड आता है उसका एक डिस्कशन पार्ट होता है, वो ये डिस्कशन सेशन कहलाता है। पार्ट 3 डिस्कशन सेशन होता है। आपसे 6 सवाल किए जाते हैं एंड यू हैव टू स्पीक फॉर 30 सेकेंड्स, यानी कि ये चलता है तकरीबन 3 से 5 मिनट। ओवरऑल आपका पार्ट 1 3 मिनट, पार्ट 2 3 मिनट, पार्ट 3 5 मिनट, 11 से 14 मिनट तक चल सकते हैं आपका स्पीकिंग का टेस्ट। और आजकल स्पीकिंग का टेस्ट ऑन स्क्रीन हो रहा है।
तो जाओ, अभी आपकी हालत है, इसी हालत में आपको टेस्ट देना है, तो आइडियल हो गया। अब फिजिकल एकेडमीज का एक नेगेटिव साइड बता दूं, आज भी पेपर पैटर्न पे तैयारी करवा रहे हैं। आप जाएंगे, आपके हाथ में पीडीएफ्स हैं, पेपर्स हैं, आप टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, आपके पास तो कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि आइल्स इज नाउ ऑन कंप्यूटर। आप जिस दिन आइल्स के एग्जाम की तैयारी शुरू करें तो लैपटॉप पे क्लास लीजिएगा। चलो लैपटॉप पे ना लो, मोबाइल पे ले लो, लेकिन तुम्हें स्क्रीन बहुत छोटी दिखेगी। अभी जा रहे हैं हम पोर्टल के ऊपर, हम पोर्टल को भी विजिट करेंगे, पोर्टल का आईडी और पासवर्ड दूंगा, जाके जितना यूज करना है कर लेना आज की रात, कल रात 12 बजे तक, ठीक है। 24 घंटे की आपके पास एक्सेस है, ताकि आप मॉक टेस्ट दे सकें, आपके रिजल्ट्स आ सकें आपके सामने। आपके स्पीकिंग के सेशन की दो टाइमिंग्स हैं, ये पब्लिक डिमांड पर हमने रखी है। 7 से 7:45 ले लें, उसके बाद सर को ज्वाइन कर लें, 7:45 से 9। फिर दोबारा स्पीकिंग का सेशन है, यानी कि मेरे सेशन से पहले और मेरे सेशन के बाद आपकी जो रेगुलर स्पीकिंग की क्लास होती है वो ये है। आई कंडक्ट योर रीडिंग एंड लिसनिंग सेशन 5 days a week. मिस इरम विल कंडक्ट योर स्पीकिंग सेशन 5 days a week. टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, ये रेगुलर क्लास टाइमिंग है इसमें। और मिस इरम से आपकी मुलाकात होती है रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, ज्यादातर होंगे अभी फ्री वाले, हैदराबाद जाने के पैसे नहीं होंगे। मेरे लोग इस बात पे बहुत मुस्कुराते हैं, हैदराबाद जाने के पैसे नहीं है, आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सर वो प्लॉट बेच के जाएंगे हम, ठीक है करें। लेकिन आपको मिस इरम के सेशन की एक्सेस मिलती है, क्योंकि वह सारे हमारे सीरियस पार्टिसिपेंट्स, पेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते। यही हमारी राइटिंग की क्लास का होता है, कि राइटिंग की क्लास के अंदर हम आपको एक्सेस जब ही देते हैं जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि वरना बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, हमारे रेगुलर स्टूडेंट शिकायत करते हैं, सर मैंने अब महसूस किया कि मैं अभी इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं आइल्स करूँ। आपकी बातों से अंदाजा मुझे हो गया है कि मेरी लैंग्वेज स्किल्स कमजोर है। दिल छोटा ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लैंग्वेज कोर्स कर लो। अगर तुम्हारे पास अभी है 6 महीने, साल, इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स। तुम यकीन करो, तुमने 3 महीने लैंग्वेज स्किल्स कोर्स कर लिया, उसके बाद तुम्हें आइल्स में सिर्फ 4 हफ्ते लगाने पड़ेंगे। टाइमिंग नोट कर लें, आइल्स स्पोकन इंग्लिश। मैं आपको कल के सेशन में स्पोकन इंग्लिश की भी एक्सेस दे रहा हूँ। आप 3 से 3, 4:30 कल ले लीजिए, कल से सेशन स्टार्ट हो रहा है, कल 3 नवंबर है, बैच 1 स्टार्ट हो रहा है। सर हाँ, मैं फैसला करने के लिए ये ज्यादा बेहतर है, आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे भी हम आपको अलाउ कर देते हैं, अगर आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देते रहते हैं। आपको खुद एहसास होगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है। सर मेरे लैंग्वेज स्किल्स सपोर्ट नहीं कर रहे, बस मैं लैंग्वेज क्लासेस ही लूंगी, दैट्स वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई एम इनवाइटिंग यू टू टेक डिसीजन। आप रात में ले लीजिए लैंग्वेज क्लासेस, कल दोनों टाइमिंग्स पे आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी। बेहतर ही होगा दोपहर में ले लो, वरना फिर पता है रात के सेशन की टाइमिंग क्या हो जाएगी, फिर रात के सेशन की टाइमिंग कुछ देखो इस तरह से हो जाएगी तुम्हारी। ये आप, ये तुम्हारी कल की टाइमिंग, अभी भी आप सोच रहे हैं कि हम ज्वाइन करें ना करें, सोचते रहें, लेकिन कल की टाइमिंग नोट कर लीजिए। कल 7 से 7:45 आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्पीकिंग के सेशन में। मैंने बहुत बेहतरीन कुछ मटेरियल मेरा डिजाइन हुआ है, आपको स्पीकिंग में बहुत हेल्प होगी, आप देखेगा। मैं कल आपको स्पीकिंग के सेशन में बोलने का मौका इतना नहीं दूंगा जितना मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। आपको बोलने का मौका मिलता है अपने रेगुलर सेशन में, जब आप मिस इरम को ज्वाइन करेंगे, फिर आप सर को रीडिंग में ज्वाइन करेंगे, लिसनिंग में ज्वाइन करेंगे, यानी कि कल आप सर के साथ 7 से 9 कनेक्टेड रहेंगे। फिर आपको सर ने 9 से 10:30 की एक्सेस दे दी है, पहले आपके आइल्स की ग्रामर की क्लास है, उसके बाद हमारी एक डिस्कशन क्लास होती है, उसकी भी आपको एक्सेस मिल जाएगी। आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, आप सेशंस लें। वेडनेसडे को फीडबैक सबमिट करा दें, अपना डिसीजन सबमिट करा दें। आई एम नॉट विलिंग टू ज्वाइन, आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग, सर आई वांट टू ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स, आई विल ज्वाइन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। बस सर मैंने फैसला कर लिया, मैंने पाकिस्तान में रहना है, मुझे नहीं लगता कि मैं जा सकती हूँ पाकिस्तान छोड़ के। इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखो लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव कर लो, तुम्हारा आइल्स क्लियर हो जाएगा। हमारे पास लैंग्वेज स्किल्स के अंदर
8 लैंग्वेज एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं मेरे साथ, मुझे मिलाकर 8 लैंग्वेज टीचर्स अपनी सर्विसेज देते हैं लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप दोपहर में ज्वाइन करें, यू विल हैव 2 डिस्कशन टीचर्स, वन इज स्पोकन टीचर, ग्रामर टीचर, प्रोनाउंसिएशन टीचर। 4 टीचर्स दोपहर में, 4 रात। मैं कॉमन हूँ, प्रोनाउंसिएशन टीचर कॉमन। फिर आपका एक्टिविटी सेशन भी है, यू हैव प्रेजेंटेशन सेशन, फ्लुएंसी टेस्ट, डिबेट सेशन। आइल्स के पार्टिसिपेंट्स को भी इसकी एक्सेस देते हैं फ्राइडे वाले दिन दोपहर में 3 से 5:15 आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्राइडे वाला सेशन, प्रेजेंटेशन, फ्लुएंसी टेस्ट और डिबेट सेशन। ठीक है बेटा। अगर आप कल का सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपके सामने अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट आ गया। आज 2 नवंबर है, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए अपनी, स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा कोई दूसरा पेमेंट मेथड नहीं है, कोई आपसे फीस मांगे किसी और नंबर में, प्लीज डोंट बिलीव इन एनीवन। लास्ट वीक भी स्कैम 2 हुए हमारे साथ। हमारी डेमो क्लास में बच्चे बिठाते हैं और फीस खुद देते हैं। तो नाम याद रखें और पहचान याद रखें, SKH। जिस नंबर से आप कनेक्टेड है वही मेरा पेमेंट मेथड है। नीचे मेरा HBL का अकाउंट है। आपके पास एक डिस्काउंट ऑफर भी है। आप 4 वीक्स का सेशन लेते हैं तो बेटा आपको 8,000 रुपीज सबमिट कराने होते हैं। आप 6 वीक्स का सेशन लेंगे, आप 12,000 सबमिट करवाएंगे। 8 वीक्स का सेशन लेंगे, 15,000। इसमें पोर्टल की फीस हमारी शामिल नहीं होती है। पोर्टल हमारा एक अलग उसकी 1,000 रुपये सब्सक्रिप्शन होती है। आप खुद परचेज करना चाहें तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। आइए हम पोर्टल पे चलते हैं और पोर्टल का आपको ID और पासवर्ड देते हैं। ठीक है, तोहफे आज तोहफे बट रहे हैं आज, तोहफे ही तोहफे हैं आज। ये आपका पोर्टल आ गया है आपकी स्क्रीन पे। आप खुद परचेज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, चेकआउट प्रीमियम प्लान, और यहाँ पर जाएंगे आप तो यहाँ पर देखें $6, $6 में आप खुद परचेज करना चाहें 1 महीने की सब्सक्रिप्शन, $6 लगा लें बेटा आज के रेट के हिसाब से तकरीबन 2,000 रुपए। उसके ऊपर आपका कुछ टैक्स भी कटेगा, तो वो कटा कर आपको पे करने पड़ेंगे तकरीबन मेरे ख्याल से 2,200 रुपए। 2,200 रुपए महीना। जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे होते हैं मैं उनको एक्सेस दे देता हूँ। चलें आपको भी दे देते हैं आज के सेशन में। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद SKH IELTS preparation@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या था भाई हमारा पासवर्ड, SKH लिख लो अपने पास, ये लिखना पड़ेगा आपको, IELTS 15। 24 घंटे की आपको हमने एक्सेस दे दी। जैसे ही आप मैंने पासवर्ड पे रिपीट करूं, SKH IELTS 15 15 लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये आपकी 3 नवंबर 6:41 तक आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके पास इसकी एक्सेस है। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद जब आप इसको परचेज करना चाहे, खुद से परचेज करना चाहे कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है, फायदा ही है। आप हमसे परचेज करेंगे, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं हम उनको 1,000 रुपये महीना पे दे देते हैं। आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते रहे, 2 महीने में 2,000 रुपये पे करेंगे। अच्छा, मैंने आपके और पैसे पता है किस तरह से बचा लिए? मैंने आपकी किताबों के पैसे बचा लिए। जो किताबें, अब किसी को किताबें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, फिर तैयारी कहां से करेंगे बहन? अब जितनी तैयारी होगी वो कंप्यूटर के ऊपर होगी। अच्छा, तो कंप्यूटर के ऊपर जब आपको होगी तो वो PDF वाली जो आप हार्ड कॉपी में बुक्स आती थी उसका क्या करेंगे भाई? उसका अब आपको कुछ भी नहीं करना। समझ रहे हैं? तो किताबें जिन्होंने परचेज करने का सोचा हुआ है बिल्कुल इग्नोर कर दे, नहीं परचेज करनी है आपको। बस जो सर ने आपको बता दिया, ये पोर्टल एक्सेस दे दिए, आप इसका स्ट्रॉ लगा लीजिए और स्ट्रॉ लगाकर आप जो है उसको पीछे, मजा आएगा आपको। इसमें क्या क्या मिलता है आइए चलते हैं। कल जब मैं पढ़ाऊंगा तो यहीं से आपको पढ़ाऊंगा आइल्स रीडिंग। देखें, आइल्स रीडिंग में आप जाते हैं, जब आप पोर्टल में जाएंगे तो आपको प्रोग्रेस नजर आ रही होती है। यहाँ पर ये देखें,
एकेडमिक आइल्स 20 अवेलेबल है यहाँ पर। आइल्स 20 अभी तक कहीं पे भी नहीं आई है, हमारे पोर्टल पे पड़ी हुई है। आइल्स 18 यहाँ पर मिली है, 19 अभी कहीं आई भी नहीं है ना। कुछ एक पोर्टल और है, मैं बता देता हूँ, वहां पर आप चले जाएं, वहां मिल जाएगी आइल्स 18। आइल्स 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 सॉल्व, आइल्स सॉल्व, ये एक और पोर्टल है आइल्स सॉल्व करके। यहाँ पर आइल्स 19 मिल जाती है, लेकिन इसकी जो सिमुलेशन है ना, देखो पड़ा हुआ है यहाँ पर, वेब स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये आइल्स जनरल रीडिंग यहाँ पर अवेलेबल है, तो लेकिन इसका जो पोर्टल की सिमुलेशन है ना, वो नहीं है जैसे आइल्स का पेपर होता है, तो ये काफी डिफरेंट है। लेकिन जब आप ये वाले पोर्टल की एक्सेस आपको मिलती है, तो देखिए मैं आइल्स 18 यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। ये बिल्कुल वही आइडेंटिकल है जो आपका आइल्स का एग्जाम होने वाला है, 90% वही है। इसी तरह से आपको अपना पेपर, रियल पेपर दिखता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आपका पेपर में भी ऐसे ही होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है ना। तो कल इंशाल्लाह यहीं से हम शुरू करेंगे। आप को पोर्टल की वादे के मुताबिक मैंने एक्सेस दे दी, आप इसको इस्तेमाल करें और अपनी क्लास की टाइमिंग नोट कर लें, जो आपको कल से फॉलो करनी है। ये आपकी रेगुलर क्लास टाइमिंग्स है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये आपकी रेगुलर क्लास टाइमिंग्स है। हमारे पास प्रेपरेशन के 3 डिफरेंट प्लान्स होते हैं। मेरी एडवाइस हमेशा होती है पब्लिक डिमांड। 6 वीक्स वजह मैंने अभी आपको बताया, आपके राइटिंग के जो टॉपिक्स हैं वो 6 वीक्स में मुकम्मल हो जाते हैं। 6 वीक्स में जब वो मुकम्मल हो जाएंगे तो आप अपेयर हो सकते हैं। आपके लैंग्वेज स्किल्स कमजोर है तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ भाई 8 वीक्स का सेशन ले लें, ताकि आप अपने टारगेट स्कोर को अचीव कर सकें। ये आपकी रेगुलर क्लास टाइमिंग। जो कल की क्लास टाइमिंग्स है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है, आप उसको भी नोट कर लीजिए। कल दोपहर में मैंने आपको इनवाइट कर लिया है, एक स्पोकन क्लास है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप दोपहर में अवेलेबल नहीं होते तो बस 7 बजे पानी की बोतल, पेपर, नोटबुक, खाना पीना रख ले। 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और ये रेगुलर टाइमिंग्स में भी बच्चे मेरे साथ इन्हीं टाइमिंग्स में कनेक्टेड रहते हैं। 7 बजे आपकी एक स्पीकिंग की क्लास है, अगर आपकी वो स्किप हो जाए तो आप दूसरी क्लास में हो। लेकिन अभी आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये टाइमिंग्स नहीं। रेगुलर क्लास टाइमिंग्स मैंने आपको बता दी है। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका कोई भी सवाल हो, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा ही है, 0345608182, और उस पर आप कहें सर आई हैव अ क्वेश्चन, और नीचे अपना वॉइस नोट भेज दीजिए। और वॉइस नोट के नीचे लिख दीजिएगा आई हैव अ क्वेश्चन, तो मैं आपके उस वॉइस नोट को लाजमी तौर पे सुन लूंगा और आपको जवाब दूंगा। आज का स्क्रीनशॉट लेंगे अटेंडेंस का, सेशन खत्म हो ये शेयर कर दीजिएगा, इट मींस दैट यू वर इन द सेशन। और एक स्क्रीनशॉट मैं भी ले लेता हूँ आप लोगों की अटेंडेंस का, ताकि मेरे पास भी रिकॉर्ड में आ जाए दैट दीज स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन टुडेज सेशन। ठीक है, आपका कोई भी सवाल हो, यू कैन व्हाट्सएप मी a voice note, I will definitely answer you, and I'm sure that you will have no problem. हमारी स्पीकिंग के सेशन के अंदर पार्टिसिपेंट्स की लिमिट होती है। मेरे पास आइल्स स्पीकिंग के 4 टीचर्स हैं। मैं उन आजकल मैंने एक को एंगेज किया हुआ है, लेकिन जब मेरे सेशन में कभी ऐसा भी होता है मुझे 60+ पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं 7 बजे, तो मैं क्या करूं, तो मैं सारी चारों स्पीकिंग की टीचर्स को बुला लेता हूं और सबको 10-12 स्टूडेंट्स डिवाइड कर देता हूं। सो इन दिस वे यू विल हैव लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आइल्स स्पीकिंग। बाकी रीडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यू लिसन टू मी, यू एंड आंसर माय ऑल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम आती है सिर्फ स्पीकिंग में, तो स्पीकिंग को हम फिर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, चले अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपना जो अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट है वो लाजमी तौर पे शेयर कर दीजिएगा। आप वो शेयर कर देंगे तो आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा 4 दिन तक, 3 दिन तक। यू कैन अटेंड क्लासेस एंड देन यू कैन गिव मी योर फीडबैक। ठीक है, आपको अपनी किसी राइटिंग की असेसमेंट करवानी हो, आप बिला झिझक वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरी फ्री टाइमिंग्स आप नोट कर लीजिए। मैं पूरे दिन में 3 बजे से लेकर
रात 11:30 बजे तक पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रॉब्लम्स मेरे पास रात में सबमिट कर देते हैं, और सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं आपके फोन कॉल्स रिसीव करता हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता हूँ। सुबह 9 से 12 मेरा सिर्फ स्टूडेंट से व्हाट्सएप पर बात करते हुए गुजरता है, सर हमारी प्रॉब्लम्स ये है। बाकी मैं फिर उसके बाद हम पढ़ाने बीच में हमारा नमाज का ब्रेक, बच्चे लेकर आना छोड़कर आना, और 3 बजे से फिर हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर हम आपकी किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वॉइस नोट कर दे, सर आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ क्वेश्चन, मैं आपके वॉइस नोट को सुन देता हूँ और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता हूँ। ठीक है। अगर आपको कोई कस्टमाइज प्लान बनवाना है, सर मेरे पास 4 हफ्ते हैं, तो हम आपको कस्टमाइज सेल्फ प्रैक्टिस के प्लान भी बनाकर दे देते हैं कि आपकी तैयारी को बूस्ट लग जाएगा। सर मेरे पास 2 हफ्ते, मेरा पेपर बुक हुआ हुआ है, तो फिर 2 हफ्ते का प्लान बनाकर दे देंगे, और दुआएं करेंगे आपके लिए पांचों नमाज के बाद कि इस बच्चे का पेपर में डिजायर्ड स्कोर आ जाए। लेकिन समझदार बच्चे मेरी बातों को समझ गए। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।